آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے یہاں پہ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ یہاں پہ تو کوئی اتنے زیادہ خاص مسئلے مسائل نہیں ہیں، بس مین کا جو گندے نالے کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سعد رفیق صاحب یا دوسرے صاحبان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ نالے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سب سے میجر مسئلہ نالے کا ہی تھا، باقی تو یہاں سب ٹھیک ہے. تو یہ ووٹ انشاءاللہ پکا نون لیگ ہے، ہم شروع سے نون لیگ کے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. شیر ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ، اور نواز شریف زندہ باد. اچھا جی، السلام علیکم. آپ مجھے بتائیے گا مہنگائی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مہنگائی کے اوپر جی پہلے تو بہت اچھا تھا، یہ عمران خان ہی آیا جب تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، خدا جانتا ہے کہ کیسے یہ ساری چیزیں اتنی اوپر چلی گئی ہیں. اب تو یہ ہے کہ کم سے کم 1200 روپے کا ناشتہ ہے، اس کے بعد میں دوپہر کا جو کھانا ہے وہ خالی سبزی لے لیں، آلو لے لیں، وہ تو اب بھی آگے 100-150 روپے کلو ہوئے ہیں. نہیں تو پہلے 250-300 روپے کلو آلو تھے. تو پیاز تو بھی نہیں لیا جاتا، وہ بھی مہنگا ہے. بہت بہت مہنگائی ہے بہت. اب یہی امید ہے کہ نواز شریف آئے گا، یہ چیزیں نیچے جائیں گی اور انشاءاللہ جائیں گی. یہی دعا بھی ہے اور یہی دن رات یہی سوچتے ہیں کہ اس کی حکومت بن جائے تو بہتری آئے گی، کیونکہ پہلے بھی آتی تھی. یہ کام جو سارا کیا ہوا ہے یہ کنٹونمنٹ بورڈ نے کیا ہے، لیکن ان کی حکومت میں ہوا ہے. اب تو کوئی گٹر بند کر دو تو کوئی نہیں آتا. وہ یہی ہے کہ اپنے کوئی سیپر وغیرہ بلا کے آپ کھلوا لو تو کھل جاتا ہے. بس اور میں کیا کہوں، مہنگائی تو بہت ہے. السلام علیکم. آپ مجھے بتائیں آپ کو یہاں پہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں تو کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمیں پانی صحیح مل رہا ہے، ٹیوبویل کا پانی آتا ہے اور پانی صاف ملتا ہے، اور گیس بھی ہمیں صحیح مل رہی ہے. تو باقی مہنگائی کا مسئلہ ہے. اچھا، مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا لیڈر آئے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے؟ آپ کی نظر میں کون سا لیڈر بہتر ہے؟ ہماری نظر میں تو نواز شریف ہی ہے، جس نے مہنگائی پہلے بھی نہیں کی اور امید ہے کہ آج بھی نہیں کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے. باقی جو رب بہتر جانتا ہے وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پہ بنیادی مسائل کون سے ہیں؟ بنیادی مسائل تو ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے کہ کوئی جو ان سے کبھی تو کام ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے. بہرحال ایک آیا تھا لیڈر، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کر دیا جیسے. تو اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیے گا یہ خواجہ سعد رفیق کا حلقہ ہے، تو خواجہ صاحب کبھی حلقے میں آئے عوام کی، انہوں نے آ کے بات سنی، داد درسی کی کہ نہیں؟ الیکشنوں کے وقت ہی زیادہ تر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے میں کام وغیرہ زیادہ کروایا. یہ ہے کہ انہوں نے کافی اب والٹن کا جیسے کام وغیرہ ہو رہا ہے، خواجہ سعد رفیق نے کافی کام کروایا اس حلقے میں. جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں یہاں بہت مشکلات کا سامنا، سب سے بڑا مسئلہ یہ نالے کا ہے والٹن. اللہ کا شکر ہے اس پہ اب کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ الیکشن آ گئے ہیں، الیکشن میں جو بڑا ووٹ ہے نا وہ ہم دیں گے ایم این اے کا، اپنے آرمی چیف کو. اور جو ایم پی اے کا ووٹ ہے ہم وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دیں گے، کیونکہ وہ 12 بجے رات کو عدالتیں کھولتا ہے اور یہ حکومتیں گراتا ہے. لہٰذا ہمارا ووٹ ان دونوں کو ہے. جب حکومتیں بھی انہوں نے بنانی ہے اور انہوں نے گرانی ہے تو ہمارا ووٹ دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ووٹ دینے کا فائدہ تب ہے جب اس سے عوام کو کچھ حاصل ہو. حاصل کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ یہاں مینج کیا جاتا ہے، مینج کر کے یہاں حکومتیں بنائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں. 75 سال سے یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. تو آپ کی امیدیں کس کے اوپر وابستہ ہیں؟ آپ کی نظر میں کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا؟ ہماری نظر میں پاکستان کی تقدیر بدلنے والا وہ لیڈر ہو جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، جس کے بچے پاکستان میں رہے، جس کا کاروبار پاکستان میں رہے، جس کا سب کچھ پاکستان میں رہے، جنہوں نے سارا کچھ اپنا باہر رکھا ہوا ہے، سارے معاملات باہر رکھے ہیں، صرف وقت ضرورت آتے ہیں اور اپنا حکومتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ ووٹ تو جو ہے ہمارا نون لیگ کو ہے، اس لیے کہ نون لیگ نے یہاں اس ایریے میں بہت کام کرائے ہیں. مگر یہ انتقامی سیاست چل رہی ہے اور انتقام لے کر کبھی کسی کو باہر نکال دیتے ہیں، 5 سال پورا کرنے نہیں دیتے. جب تک آپ کسی بھی گورنمنٹ کو 5 سال پورا نہیں کرنے دیں گے تو کوئی استقامت نہیں آئے گی. میری 72 ایئرس ایج ہے، میں نے کئی الیکشن دیکھے ہیں اور اس میں جتنا کام نون لیگ نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا.
बाकी जो पिछली गवर्नमेंट थी 4 साल गुजार के गई है वो सबके सामने है। हमारे इलाके में साद रफ़ीक ने बहुत काम कराए हैं और वो 2-3 दफ़ा यहाँ से कामयाब हुआ है। और हमारी गलियाँ, हमारे रोड, अब ये बाहर काम हो रहा है नाले का, मेन असल काम नाले का है, उसकी वजह से हमारी आबादी सारी ख़राब हो रही थी। अब वो नए काम हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, पुल नए बन रहे हैं, ये रास्ते ही हैं जो एक दूसरे से मिलाते हैं। ये ले कहना है कि जनाब रोड से क्या बनेगा, रोड को खाने को देगा। जब रोड नहीं होंगे तो आपकी खेतों की जो है फसल है वो बाहर आप तक कैसे पहुंचेगी। लिहाजा आप ऐसे लोगों को वोट दें जो काम करें, पर हम पूरा उम्मीद है उनसे आगे। सामने को किन मुश्किलात का सामना है? बाजी इधर तो पता क्या चक्कर हुआ, ऐसी महंगाई हुई पी है, घर ना बेचारियां बुढ़ियां मावां भैनां बेचारियां मरदियां पियां भुखियां। इतना आटा महंगा होया पिया जरा कोई हिसाब मिलता भी नहीं पिया। ऐसी महंगाई हुई पी, शाम को बेचारे सुबह जाते फिर शाम को वापस आ जाते बेचारे। पीने का साफ पानी है यहाँ पे? पानी भी पीने को मिलता ही नहीं है साफ। शाम को सारी रात बेचारियां ना 2 बजे 2:30 बजे उठती हैं, 2-2:30 बजे उठ के फिर जाके नींद अपने लाल करके फिर पानी भर दियाँ घंटे 2 घंटे से। फिल्टर प्लांट लगा हुआ है इस इलाके में? इलाके जाए फिल्टर प्लांट लगे 2-2.5 साल बंद हुए पे, सब फ्रंट पे जेडे बंद हुए पे हैं। फिर वो दोबारा जेड़ा रात को पानी आता है इधर नीचे में जेड़ा आता है वो कितने गलियों में जेडे आता है तो ये हिसाब हुआ। एक गैस वो उससे नहीं आई, गैस असली ख़त्म हो गई है। हाँ जी। ख्वाजा साद रफ़ीक कभी इस हल्के में आया गरीब आवाम के, उन्होंने आके मसाइल सुने हैं? वो तो जी इधर आता है, ये सब इधर हमारे शादी हाल में आता है तो अपने सवाल अच्छे करके जाता है। हाँ जी। वोट किसको देना है? वोट तो शेर ही है अपना, शेर ही है। हाँ जी। सामने को आपके इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल यही है कि यहाँ पे एक तो ये नाले का था तो वो प्रॉब्लम तो हल हो रहा है, और इससे मज़ीद ये है कि यहाँ पे फ़िल्टर जो से हमारे हैं इनकी सफाई होने वाली है, जिसकी वजह से साफ़ पानी मैसर नहीं है। और गैस की पाइपलाइन जो सी पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से न्यू पाइपलाइंस का वो हो गया, अप्रूव हो गया, जिसकी वजह से खुदाई वगैरह हो रही है और वो मज़ीद कल को बेहतर हो जाएगा। किसके ऊपर उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? जी इंशाल्लाह शेर आएगा फिर एक दफ़ा और छा जाएगा। सामने को वालेकुम सलाम जी। आपको किन मुश्किलात का सामना है यहाँ पे, कौन से आपके बुनियादी मसाइल है इस इलाके के? बाजी जी हमारे बुनियादी मसाइल ये है, ना बिजली ना पानी, दिल फिर भी है पाकिस्तानी, साफ पानी नहीं मिलता, गंदा नाला इधर, जब बारिश पड़ती है सारा रोड ख़राब होता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। ठीक है, आते हैं वोट लेने के लिए बरसाती ये मेढक वोट लेकर चले जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है, ख्वाजा साहब कभी आए इलाके में, लोगों के आके दुख दर्द सुने उन्होंने? अब ये वोटों की बारी है, सभी आएंगे। ठीक है, हम शेर की पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह शेर को वोट देते हैं। बात करने की ये है कि जब ये वोट लेकर चले जाते हैं वापसी आएँ और आकर हमारे मसाइल हल करें। हमारी वोटों के बाद कभी आए? वोटों के बाद फिर जब कभी रूट बनता है आते हैं, मसलसल लगातार नहीं आते। सामने को वोट किसको दोगे? पीटीआई को, इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और 75 साल की तारीख़ है, कोई भी इस तरह नहीं खड़ा हुआ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के गलत पॉलिसियों की वजह से ये मुल्क इस नहज पे पहुंचा है। क्योंकि अब 2022 की आईएसआई की जो स्टेटमेंट थी उसने कहा था कि हम सियासत से हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, और उसने कहा था ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं है, ये 20 साल की जो कमांड है उसका फ़ैसला है। लेकिन देख रहे हैं कि उसने हमसे झूठ बोला। जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा करते हैं, वो हमसे झूठ बोलते हैं, हम उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है। और इस तरह की 75 साल के जो हरबे इन्होंने इस्तेमाल किए वो 1-2 सालों में इन्होंने पूरे के पूरे 75 सालों में इस्तेमाल किए हैं, और बहुत मुश्किलात से पाकिस्तान गुजर रहा है। इसका कौन ज़िम्मेदार है? 75 साल से इख्तियार तो इनके पास ही है, तो इसका ज़िम्मेदार भी यही है। अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमें उठाते हैं और हमसे ये बुरा सलूक करते हैं। ये देखें, पीटीआई के छोड़ें, आप पाकिस्तान के किस शहरी के साथ ये अच्छा सलूक कर रहे हैं। 1999 में जब नवाज शरीफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उसने कहा कि ये करप्ट है नवाज शरीफ। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मंशूर पेश किया, लेकिन मंशूर में उन्होंने जो मेन बात की वो यही कही है कि हमारे दौर में 16-17 का अगर दौर देखा जाए, हमारा तो महंगाई बहुत कम थी और इन 4 सालों में बर्बादी हो गई। जितनी महंगाई हुई है उसका सारा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को दे रहे हैं। आप उसके ऊपर क्या? 2017 से तक ऑन करते हैं ना, अगला 2018 तक उनकी गवर्नमेंट थी, शायद खकान अब्बासी उसका
प्राइम मिनिस्टर रहा, 1.5 साल उसका भाई प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके पास कौन सी पॉलिसी जो अपने सगे भाई को नहीं बता रहा, वो पाकिस्तान की खातिर बता सकता था ना। उसके पास कोई वो नहीं मंशूर। ये प्रोजेक्ट बना दिए, ये कर दिया, ना तालीम है ना हमारे पास ये सेहत के लिए है। इमरान खान ने कम से कम ये तो किया ना, हर शहरी के लिए सेहत कार्ड तो दिया ना, जिससे हम किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है, वहाँ जाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, बुरा हाल होता है। मैंने खुद अपने बहन भाई का ये गदूदों का ऑपरेशन था मसाने का, हमने खुद सेहत कार्ड से करवाया था। हम ऐसे शख्स को वोट देंगे ना, फिर उसने आप सल्लम की जो ख़त्म नबूवत पे यानी कि वो जो खाके पेश करते थे उस पर बात की, तो हम उसे वोट देंगे। इसे इनको क्यों देंगे हम? बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, किन मुश्किलात के शिकार हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहता हूँ जी, इस टाइम लोगों का म्यार ज़िंदगी बिल्कुल नीचे गया हुआ है। लोग इस टाइम बेहद परेशान हैं महंगाई की शर्रा की वजह से। इस टाइम जो आटे का बैग है वो 32-3300 रुपये का हुआ है। लोगों के पास ख़रीदने के पैसे नहीं हैं आटे के बैग के। उसके अलावा लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं। तो जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे PTI आए, चाहे नून लीग आए या पीपल्स पार्टी आए, उनको चाहिए कि लोगों को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने पे अपनी तवज्जो दें, ना कि एक दूसरे के लड़ने के पे। उसकी वजह यह है कि लोगों का ना म्यार ज़िंदगी बेहतर करना चाहिए। इनको का लोगों के बहुत जो है ना, लोग इस टाइम परेशान हैं, शदीद मुश्किलात का शिकार। मुझे बताइएगा ये सारी महंगाई का आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? PDM की गवर्नमेंट को। पिछले 16 माह आप देख लें उनकी क्या कारकर्दगी है। शहबाज शरीफ साहब जब आए थे पेट्रोल 145 था, घी 400 था, जो अब वो 550 और तकरीबन 600 650 अव्वल दर्जे का घी हुआ है। आप एक चक्की का जो देसी आटा जो यूज़ होता है घर में, वो 180-190 रुपीज़ kg है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुई है। लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये आए, इन्होंने वो सेहत कार्ड बंद किया। खान साहब के बहुत से अच्छे इकदाम हैं, जिनमें मैं मेन 2-4 बताना चाहूँगा। सेहत कार्ड था, उसके अलावा 14,000 रुपया लोगों को मिल रहा था। इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये का कहा। मुझे कोई बता दे कि किसी को मिला हो 2,000 रुपया, मुझे नहीं लगता मिला। फिर उसके बाद खान साहब का एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था एहसास राशन प्रोग्राम का, जो आगे वो इन्होंने भी PDM की गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म किया। लोगों को सब्सिडी मिल रही थी 12-14 हज़ार रुपये की राशन पे भी, तो लोगों का गुजर बसर चल रहा था। अब वोट किसको देंगे? वोट जी इंशाल्लाह हमने तो PTI को ही देना है। तो वो चाहे जीतें या ना जीतें, वोट एक अमानत है, मुल्की अमानत है, तो इसको सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम सब की आइनी जिम्मेदारी है, और ये ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का शिकार हैं आप भी? इन करंट सिचुएशन में जी मुश्किलात हैं, आसानी क्या है? आप बताएं कि यहाँ पे आसानी से हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारा देख लें, हमारा अदलिया का निज़ाम देख लें, हमारा किसी महकमे में चले जाएँ, कहीं अगर आपको कोई आसानी नज़र आ रही है तो वेल एंड गुड, ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है। अगर हमारे बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम मिल रही है, हमारे हॉस्पिटल में हमारा इलाज बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ के भी उनको जॉब के ऑफर्स हैं, तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर सब ये वोट किसको देंगे? वोट अल्हम्दुलिल्लाह कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो इलाका है ये ज़ाहिर है नून लीग का गढ़ समझा जाता है, तो नून लीग की अगर बात की जाए, ख्वाजा साद रफ़ीक इलाके में आते हैं, लोगों के आके हाल हवाल पूछते हैं, या सिर्फ वोट की हद तक आते हैं और घर बैठ जाते हैं? जी नहीं, ख्वाजा साहब और नून लीग आती है यहाँ पे, उन्होंने काम भी किए हैं। हमारे हलके में कॉलेज स्कूल उन्होंने बनाए हैं, और स्कूल ये मैंने 92 में मैट्रिक किया है, और मैं उस टाइम नीचे बैठ के पढ़ा हूँ इसी स्कूल में। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ये स्कूल, दोनों लड़कियों का भी और लड़कों का भी स्कूल अभी बेहतरीन बिल्डिंग्स बन गई हैं, और आगे भी इंशाल्लाह वो इम्प्रूव करने का इरादा रखते हैं और होगा। और ये काम आपके सामने चल रहा है, जो ये भी उन्हीं की काविशों से। ये देख लें, हमारे वाल्टन रोड का एक दरीना मसला था यहाँ पे, ये गंदा नाला और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रही थी, अभी ये आपके सामने काम चल रहा है, तो ये उन्हीं की काविशों से चल रहा है। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह वोट हम शेर को देंगे और नवाज शरीफ को देंगे। उसके अलावा मुल्क में अगर नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो क्या है, कोई अगर है तो कोई बता दें कि जी ये चीज़ें हैं। खान साहब ने सिवाय इंतशार के इस मुल्क में कुछ भी नहीं किया, और जैसे शायद अभी लोग पता नहीं क्यों उनके इतने सपोर्टर हैं, बहरहाल उनकी अपनी राय है, हम उनका एहतराम करते हैं, वो कर सकते हैं अपना बेशक। अगर 3 मरतबा बारी लेने के बाद भी अगर हमारा लीडर ये कहे कि अब की बार हम मुल्क संवार देंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो पहली बार क्यों नहीं संवारा, दूसरी बार क्यों नहीं संवारा, तीसरी बार अब भी कह रहे हैं कि हम संवार देंगे। इट मीन दैट कि वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने संवारा नहीं, पहले नहीं संवारा हुआ, बिगड़ा हुआ है। देखते हैं। हाँ, एक जस्ट मिनट,
साद रफ़ीक बज़ात खुद एक अच्छा आदमी है। मैं तो कहता हूँ मेरे पास आएगा जब, मैं कहूँगा कि आप जाएं, आप इंश्योर करें कि आप वज़ीर-ए-आला या वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हैं, तो हम जब आप हमारी वोट लेके आप कहाँ जाओगे, जाके आपने इन शरीफों को ही आपने आगे लेके आना है हमारे सर पे, फिर सॉरी, क्योंकि यही ख़ानदान रह गया वज़ीर-ए-आला बनने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, और कोई पार्टी में बंदा ही नहीं है। अपने ख़ानदान में घर में सारा कुछ रखा हुआ है इन्होंने, दैट्स द पॉइंट।